Hello dear students, Namaskar. You know very well that I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapeeth Residential School, Shivpuri, and today I am going to explain you a very interesting poem. The name of poem is that Rain on the Roof. It means you can see here rain on the roof. So it's very interesting poem. I am going to explain you this poem and I hope that you will enjoy this poem. Okay, so sometimes suppose the cloud is so dark, and it's you can see that shadow of dark, you can see that the shadow of the cloud, you can see when the full of water, the cloud. Okay, and it starts raining. So you can, I hope that you have listened to the voice of dropping of the drops, means patter. Have you listened to the patter? No. Okay, no problem. Patter means the sound of or voice of the falling of the drops from the sky. Where sometimes the drops fall on the roof, so we listen the sound. That sound is called patter. Okay, now come to the first line. When the humid shadows hover, means humid means wet, sometimes you can say that, or full of moist, you can say that. And shadow hover means cover, means the cloud cover sometimes all over the starry sphere. It means sometimes you can say that the whole world is just like a sphere, and in night you can see different or uncounted stars. So the whole stars are covered due to the cloud. That is the full of water, you can see that. And the melancholy darkness means so darkness there we cannot see anything in the night when we see the dark. Okay, so melancholy means full of tear, you can see that. Sad, you can see that, sad, or you can see that unhappy cloud, you can see that. So darkness यानी कि जो अंधेरा छा जाता है बादलों में, बादल जो बरसते हैं तो अंधेरा छा जाता है। नाइट में भी जब हम देखते हैं बादल छा जाते हैं, घना अंधेरा छा जाता है, तो वो अंधेरा जो है हमारे बहुत सारे तारे होते हैं, तारा का मंडल होता है, उसको घेर लेते हैं और उसको कवर कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टारी स्फीयर्स। स्फीयर्स मीन्स यू नो वेरी वेल, गोले के समान होता है जैसा। तो मेलंकली उदास, डार्कनेस, तो उसमें क्या उदासीनता छा जाती है, मतलब दुखी हो जाता है। उस मेलंकली डार्कनेस जो अंधेरा होता है, अंधेरे को जो है ह्यूमन बींग से भी इसमें जो कंपैरिजन किया हुआ है वो उदास है। एंड जेंटली बीप्स, रोने लगता है। कौन रोता है? एंड रेनी टीयर्स। और हम इसमें पोइट ये कहना चाहता है कि जो जब बादल से बूंदाबांदी होती है, वर्षा होती है, तो उसको जो है रोने के समान कहा गया है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल रो रहे हों, उदास बादल रो रहा हो, ऐसा लगता है, मान के चलते। वो तो कल्पना है, इट्स इमेजिनेशन ऑफ द पोएट इन दिस पोएम। ओके, सो इट्स द ब्यूटी ऑफ द नेचर हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। व्हाट ए विल्स। और जब जो है वर्षा होती है तो जो है पोइट को बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉय करता है पोइट। एंड विल्स मीन्स आनंद, खुश हो जाता है। एंड टू प्रेज द पिलो ऑफ ए खड़ेज चैम्बर बेड, मीन्स जब वर्षा होती है तो लेखक जो है अपने कमरे में बिस्तर पर तकिया पे सर रख करके वो आराम से सोता है, आराम से। और जो है वर्षा होती है, वर्षा की पैटर्निंग का आनंद लेता है। मीन्स जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं छत पर तो उसका आनंद लेता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही क्या? तो जब वर्षा की बूंदें नीचे गिरती हैं फर्श पर या टाइल्स पर तो उसको बड़ा आनंद आता है। ओके, आई होप दैट यू आल्सो एंजॉय द पैटर्न और पैटर्न्स। ओके,
एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, यानी कि वो सोते सोते, लाई मीन्स लेटना होता है, तो लेखक यानी कि वो कवि जो है अपने बेडरूम में लेट करके तकिया पर सिर रख करके और वर्षा का आनंद लेता है। बड़ी अच्छी मधुर ध्वनि आती है जब वर्षा होती है, पट पट की आवाज़ आती है इस तरीके से। एंड ऑफ द सॉफ्ट रेन आवर हेड, जब वर्षा होती है, सॉफ्ट रेनिंग मीन्स बढ़िया हल्की फुल्की वर्षा होती है और वर्षा की बूंदों की जब आवाज़ आती है तो बड़ा अच्छा मधुर ध्वनि हमको महसूस होता है। Now come to the next stanza, okay? This is the first stanza. I hope that you have understood the concept of this stanza. Now come to the next stanza, okay? This is the next stanza. You will, and okay? Every tinkle, tinkle means, you know very well that tinkle means the soft sound of drops, falling of the drops, you can see that. The every, हर एक छोटी से छोटी आवाज़, तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, सिंगल मीन्स टाइल्स, टाइल्स जानते हैं जो बिछाते हैं हम छत पर, उस पर बूंद गिरती है, हर एक बूंद की आवाज़ जो आती है, छोटी 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 आवाज़ आती है, ऐसी बहुत सारी बूंदें गिरती हैं, उनकी छोटी छोटी आवाज़ मिल करके बहुत बड़ी आवाज़ बन जाती है वो। एंड हैज़ एन ईको इन द हार्ट, जब वो बूंदें गिरती हैं टाइल्स पर गिरती हैं, तो ऐसी बहुत सारी बूंदों की आवाज़ मिल करके वो एक उनकी कवि के हृदय में गूंजती रहती हैं बहुत देर तक, इतना आनंद आता है कवि को। एंड थाउजेंड्स ड्रीमिंग फैंसीज मीन्स इमेजिनेशन, यू कैन से दैट, इमेजिनेशन इन द हार्ट ऑफ पोइट सॉरी, तो हजारों स्मृतियाँ उसके मन में जाग जाती हैं, कवि के हृदय में हजारों स्मृतियाँ जाग जाती हैं, याद आ जाती हैं, उसको मेमोराइज कर लेता है जब वो वर्षा होती है, वर्षा को देख करके और वर्षा की आवाज़ को सुन करके, तो उसके हृदय में हजारों ऐसी स्मृतियाँ जाग जाती हैं, आ जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और ऐसी स्मृतियाँ जाती हैं और ऐसा लगता है कि उसके हृदय में बहुत सारी स्मृतियाँ आ जाती हैं और वो कुछ न कुछ ऐसा कुछ होने लगता है हृदय में। आगे देखिए, एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शंस मीन्स हजारों स्मृतियाँ आ जाती हैं। एंड बीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ मीन्स होता है कपड़ा होता है, इसे बुनते हैं, कपड़ा बुना जाता है। तो ऐसे ही जो एयर की हवा चल रही थी, हवा के माध्यम से बुने, तो ऐसा वो आवाज़ सुन करके उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पुरानी स्मृतियाँ मूविंग हो रही हैं, बुन रही हैं, स्मृति आ रही थी उसके, यानी कि जो पास्ट निकल गया है उसके जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, स्मृतियाँ याद आ रही हैं, उसको याद आती हैं, वैसा लग रहा है उसके जीवन में एक बहुत बड़ा स्मृतियों का जाल बन रहा था कपड़ा की तरह। एंड वीव मीन्स होता बुनना, तो ओके, एंड देयर एयर थ्रेड्स, हवा की थ्रेड्स, हवा रूपी धागा और वर्षा की आवाज़, इस तरीके से वो याद सुन करके उसके मन में बहुत सारी यादें ताज़ी हो रही थी। एज आई लिसन टू द पेटर, और जैसे ही वो वर्षा की आवाज़ को सुनता है, मीन्स पेटर्स ऑन द रूफ, जब जही वर्षा होती है, बूंदें जो है ज़मीन पर गिरती हैं, तो उसको बहुत सारी यादें आ जाती हैं, यादें ताज़ी हो जाती हैं। एंड ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब छत पर वो गिरती हैं बूंदें तब, ठीक है ना। So I hope that you will have understood the concept of this lesson, and this poem stanza means this is a very interesting poem, and beauty of nature has been explained here, disclosed here, and I hope you will also enjoy the beauty of nature. Now come to the third stanza. Dear students, try to understand the concept of this poem. Okay, so this is very interesting chapter poem to all the students. Try to understand. Now in Mary comes my mother. अब जो है मीन्स जो पोइट है, पोइट को ये बारिश की आवाज़ सुन करके, वर्षा होती है तो आनंद आता है उसको, और उसके बचपन की याद आ जाती है, उसको अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ जब वो छोटा था पोइट, तो उसकी माँ भी उसको जो है देखती रहती थी, वर्षा होती तब अच्छी आवाज़ आया करती थी, और माँ के साथ जो खेलना कूदना
हैं। तो ये सब सारी चीज़ें उनको याद आती हैं, माँ की याद आती है उसको, कवि को। एज सी यूज इन ईयर्स एगो, मीन्स एगोन मीन्स यूज फॉर एगो, मीन्स वर्षों पहले की बात, माँ के साथ की जो घटनाएं थी, अच्छी स्मृतियाँ थी, वो याद आ रही थी। एंड टू रिगार्ड द ड्रीम डार्लिंग ड्रीमर, मीन्स बहुत अच्छी स्मृति याद आई थी। डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स बहुत अच्छी यादें उसको आ रही थी अपनी माँ के साथ की। उसकी माँ जब वर्षा हो रही होती है, उसकी माँ उसको खिलाती रहती थी, खेलते रहते वर्षा के समय, तो उसको याद आती है उसकी माँ की। एंड एज सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और जब तक वो जो है जब तक सवेरा नहीं हो जाता तब तक, रात में जब वर्षा में होती थी तो वो आनंद लेता था वर्षा का। और उसकी माँ हालांकि अब नहीं है, यहाँ इससे पता चलता है उसकी माँ मीन्स हिज मदर इज डेड नाउ, शी इज नॉट प्रेजेंट हियर एट दिस टाइम, ओके, सो ही इज मेमोराइजिंग हिज मदर। एंड ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वर्षा होती रहती और उसकी माँ उसकी तरफ देखती रहती थी, एंजॉय करती थी, बच्चे को देख करके खुशी महसूस किया करती थी। ऐसी मेमोरीज पोइट को आती हैं। एज आई लिस्ट टू हिज रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स रिपीटेड पार्ट ऑफ द पोएम और सॉन्ग, ओके, जैसे उसकी माँ बोलती थी, रिपीट किया करती थी कोई गाना वगैरह, उसको सुना करता था वो हमेशा। तो वो सब सारी घटनाएँ अब उसकी स्मृतियाँ उसको याद आ रही हैं। और विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और उस समय जो है रूप हुआ करती थी, टाइल्स पर पानी गिरता था, बूंदा गिरती थी, छोटी छोटी ड्रॉप्स गिरती थी, उसको आनंद आता था, अच्छा लगता था उसको। एंड बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि जब पैटर मीन्स यू नो वेरी वेल दैट साउंड ऑफ फॉलिंग ऑफ द ड्रॉप्स ऑन द यू कैन सी दैट singles or tiles, okay, so it's a very melodious sound of rain, and I hope that you will also enjoy the patter because it's very interesting. Sometimes this is the rainy season also, we are listening every day, and we enjoy rainy seasons because it's the beauty of the nature, and there is no limit of beauty of nature. So we try to enjoy the beauty of nature, okay. तो ये पोएम बहुत अच्छी है आपके लिए। I hope that you will understand the concept of the poem, okay. Now next you can understand what do you following. Now come to the question number 1. What do you follow? The phrase means by you discuss in the class, means humid shadows, ये phrase है, this is the phrase, okay. Humid shadows, humid shadows, you can see here, humid shadows, humid shadows, this is the phrase, okay. Humid shadows means you can understand the shadowy cloud laden with full of droplets rainwater, okay. Okay, now come to the next point is that starry sphere. Starry sphere you can understand here. Where is that? Starry sphere. This is a starry sphere. Means it is just like a stars in the sky. You know very well that thing. And next thing, when words bliss. Bliss means happiness. You could. What a bliss, what a happiness in the mind. Utmost joy experienced by the poet, okay? Means poet feels so joy. And next come to the point number 4. Thousands dreamy fancies into the busy being start. Means we can say that this is the report to the various imaginations of the poet. He thinks and enjoy the memories, past memories. And what does the poet like to do when it rains? जब वर्षा होती है तो कभी क्या करता भाई? And because when it rains, the poet feels delighted to lie. Delighted means to enjoy. He feels so enjoyment, enjoy, very happy. And live with his head pressed against the pillow of his bed in the room of the rural cottage and listen to the patter and enjoy the beauty of the
poet, nature you can tell. Okay, so I hope that you will have understood the concept and enjoy of this poem. And I hope this is the very interesting poem to all the students, and try to understand the concept of this poem. Okay, and I request to all the students to take down the concept and questions and answers of this poem, because I have sent to all the students through my WhatsApp number. Okay, so thank you to watch this video to learn something into the field of literature and poems. Okay, thank you very much.